تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت ذاکر علی نوری کا بیان رہے گا، اسلام کی خواتین کو ایک پیغام دیتے ہوئے کہ انہیں کس بات پر عمل کرنی چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور یہ پیغام ہم سب کے لیے بھی ہے۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ سنی دعوت اسلامی کے 32ویں سالانہ سنی اجتماع کے پہلے دن آپ کا یہ امڑتا ہوا سیلاب اور خواتین کی اتنی بڑی تعداد میں شرکت اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ آپ کے اندر دین متین سیکھنے کا بھی جذبہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے دین سے والہانہ محبت بھی رکھتی ہیں۔ لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ سیکھنے کی محبت تک کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ سکھایا جائے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ اور عملی جامہ پہنانے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ جیسا کہ بہت سارے مرد حضرات یہ کہا کرتے ہیں کہ حضرت دعا کیجئے کہ اللہ عثمان غنی کا خزانہ عطا فرمائے، تو میں کبھی ان کے لیے ادھوری دعا نہیں کرتا، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں عثمان غنی کے خزانے جیسا خزانہ بھی عطا فرما اور ان کے جذبہ سخاوت جیسا جذبہ بھی عطا فرما۔ تو ہم اگر صرف سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور عمل کا جذبہ نہیں ہے تو قیامت کے دن ہمارے لیے اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھ سے پیشتر حضور مفکر اسلام سرمایہ اہل سنت کا ایک ولولہ انگیز خطاب آپ نے سماعت فرمایا اور عورت کے کردار کے حوالے سے سنا آپ نے کہ کامیاب انسانوں کے پیچھے عورتوں کا کتنا عظیم رول رہا ہے اور کتنا عظیم کردار رہا ہے۔ اس کردار کے حوالے سے گفتگو سے پہلے حضور مفکر اسلام نے فرمایا کلچر کے حوالے سے، تہذیب کے حوالے سے، کہ آج ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، یہ ساری چیزیں کہیں سے بھی ایسی نظر نہیں آتی جس سے اسلام کی خوشبو ہمارے مشام جاں کو معطر کرتا ہوا دکھائی دے۔ میں آج آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ انسان بنتا کیسے ہے اور بگڑتا کیسے ہے۔ آپ جب غور سے سماعت فرمائیں گی تو انشاءاللہ العظیم آپ محسوس کر سکیں گی کہ وہ خواتین جن کے بطن سے پیدا ہونے والے بچے نہ جانے کتنے ملکوں تک دعوت دین کا کام اور فریضہ انجام دے کر گمراہوں کو سیدھا راستہ دکھاتے اور جن کی صحبت میں بیٹھنے والے گناہوں سے توبہ کر لیتے، جن کے خطابات سننے کے بعد زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا، جہنم کے راستے پر چلنے والا انسان جنت کا مسافر بن جاتا، یہ ماؤں کے اندر ایسی خوبیاں کس وجہ سے تھیں جس کی بنیاد پر ان کے کردار کا اثر ان کے بچوں کی زندگی پر پڑا کرتا تھا۔ اور آج کیا وجہ ہے کہ ہر ماں کی سوچ الا ماشاءاللہ یہ بنتی نظر آتی ہے کہ میرا بچہ ایسا بنے ویسا بنے، میرا بچہ یہ سیکھے وہ سیکھے، اور اپنے بچے کے حوالے سے قطعی طور پر یہ فکر نہیں کہ میرا بچہ دین کے راستے پر چل کر میری نجات کا ذریعہ بنے، سامان آخرت بنے، توشہ آخرت بنے، اور اس کی ذات سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع لوگوں کے دلوں میں روشن ہو۔ آخر یہ مزاج عورتوں کا کیوں نہیں بن رہا اور ان عورتوں کا مزاج کس وجہ سے بنا تھا، میں تھوڑا سا اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ شاید کہ میری بات قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھانے پر آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ دیکھیے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے۔ اللہ اکبر! ایک انسان جب اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس انسان کی سچویشن کیا ہوتی ہے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے
अल्लाह ने जब तुमको अपनी माओं के पेट से निकाला, ला तालमून शैआ, तुम कुछ नहीं जानते थे, बिल्कुल अनपढ़, कोई चीज़ का इल्म नहीं, कोई चीज़ का नॉलेज नहीं, इस तरह से तुम अपनी माँ के पेट से पैदा हुए। लेकिन फिर आगे मेरा रब फरमाता है, वजअल लकुमुस्समअ वल अबसार वल अफइदा कलीलन मा तशकुरून। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने तुम्हारे लिए कान बनाए, आँख बनाया, दिल बनाया, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। यहाँ से ये बात समझ में आई, कान का जिक्र परवरदिगार ने पहले फरमाया, उसके बाद आँख का जिक्र फरमाया और उसके बाद दिल का जिक्र फरमाया। याद रखें, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के वो बंदे जो अच्छी बातें सुना करते हैं और अच्छी बातें देखा करते हैं, उनका दिल भी अच्छी बातों की मोहब्बत के अंदर और अच्छे लोगों की मोहब्बत से सरशार होता है। और जिनकी आँखें और जिनके कान गलत बातें सुना करते हैं और देखा करते हैं, उनके दिल में गुनाहों की मोहब्बत पैदा हुआ करती है। कान का बड़ा कलीदी रोल है और आँख का भी बड़ा कलीदी रोल है। इन दोनों का जिक्र अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने पहले फरमाया और दिल का जिक्र बाद में फरमाया। आदमी कुछ सुनता है और सुनने के बाद और कुछ देखता है, देखने के बाद उसकी मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो जाती है। आपने बहुत सारे नात खानों को सुना होगा, कभी कभी ऐसा होता है कुछ नात खानों की आवाज़ इतनी अच्छी होती है कि उनकी नातें सुनकर उनकी मोहब्बत दिल में जगह पकड़ लेती है। और कभी कभी कुछ इतने अल्लाह वाले खूबसूरत होते हैं जिनके रुख ज़ैबा को देखने के बाद उनकी मोहब्बत का चिराग सीने में रोशन हो जाता है। लेकिन आज हमारी कौम का मिजाज और ख़वातीन इस्लाम का मिजाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातों को सुनने का और अल्लाह के कलाम के सुनने का नहीं रह गया, बल्कि आज हम अगर देखें तो ख़वातीन की गाड़ियाँ हो, ख़वातीन की महफिल हो, ख़वातीन की तन्हाई हो, ख़वातीन का माहौल हो, तो वहाँ सुनने को जो चीज़ मिलेगी या म्यूज़िक या गाने या और कोई चीज़ जिससे इंसान का दिमाग भी मुतासिर हो और साथ ही साथ उसकी जिंदगी के अंदर कोई अच्छाई का जज्बा पैदा न हो सके। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। ऐ ख़वातीन इस्लाम, आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से जहन में महफूज रखें। आपको ये देखना है कि सुनना क्या है। आपको सुनने का असर इंसान की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा हुआ करता है। इंसान जब किसी से अपनी तारीफ़ सुनता है तो उसका चेहरा तमतमाने लगता है, और इंसान किसी से अपने मुताल्लिक गालियाँ सुनता है या बुराइयां सुनता है तो उसके टेंशन में इजाफा भी होता है और चेहरा मुतगय्यर हो जाया करता है। सुनने का ताल्लुक इंसान की ज़िंदगी पर बहुत मुअस्सिर हुआ करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर आप ज़रा देखें आज पूरे मुआशरे के अंदर जिस तरीके की ज़िंदगी ख़वातीन गुजार रही हैं, डिप्रेशन का मामला, नींद की गोलियों का मामला, तबीयत की बेखराबी का मामला, बेचैनी का मामला, बेकरारी का मामला, स्ट्रेस का मामला, इसमें आप अगर दूर तक कहीं जा कर के देखेंगे तो इस चीज़ का ज़रूर दखल आपको मिलेगा कि उनके कान में कोई ऐसी बात ज़रूर पहुंची है जिसने इनकी नींद को ख़राब कर दिया, जिसने इनके आराम को ख़राब कर दिया, जिसने इनकी सोच को परागंदा कर दिया। आपको मैं बताऊं, अल्लाह वालियाँ क्या सुना करती थी, अब तो ऐसा हो गया है कि नए नए लफ्ज़ आ चुके हैं, नए नए अल्फाज आ चुके हैं। गीबत की महफिल औरतों की जमी हुई है, क्या कर रहे हैं? गॉसिप कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। आप जरा सोचिए, ऐसे ऐसे अल्फाज नए नए दिए जा रहे हैं, गुनाहों की बातों के लिए अलग अल्फाज, और उसको भी इतना मॉडर्न बनाकर पेश किया जाता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। आप जरा सोचें, इंसान की जिंदगी पर बातों का भी असर पड़ता है और गानों का भी असर पड़ता है। गाना सुनने के बाद कभी लड़कियां जो है वो मटकने लगती हैं, कभी लड़के मटकने लगते हैं। गानों की वजह से दिल में निफाक पैदा होता है, गानों की वजह से सोच खराब हो जाया करती है, गानों की वजह से मिजाज में तब्दीली पैदा हो जाती है, गानों की वजह से इंसान आवारगी की दहलीज ही पर नहीं बल्कि दरवाजे को फलांगता हुआ आवारगी के अंदर जिंदगी गुजारता हुआ नजर आता है। जिस तरीके से कानों के सुनने का बड़ा दखल है इंसान की तबीयत पर, उसके मिजाज पर, इसी तरीके से देखने का भी मामला है कि इंसान अगर कोई ऐसी चीज देख ले जो उसके दिमाग को मुश्तइल
मुश्तइल कर दे, उसके जज्बात को मुश्तइल कर दे, उसके बाद हजार पाकीज़गी की बातें की जाएं, दिमाग पर चढ़ी हुई बुराई की पिक्चर उसको अच्छी बातों को सुनने से रोक देती है। आज बुराइयों का सैलाब, उर्यानियत का सैलाब, फहाशी का सैलाब आज इस तरीके से माहौल को परागंदा किए हुए है कि हम देखते हैं कल तक जो खवातीन अपने वजूद को छुपाने में फख्र महसूस करती थी, आज इल्ला माशाअल्लाह कुछ बच्चियां ऐसी हैं कि जिस्म की नुमाइश करने में फख्र महसूस करती हैं। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, कभी आपने महसूस किया कि आपके वजूद को दिखाने की बुनियाद पर और बेहयाई की बुनियाद पर मुआशरा कितना बिदक रहा है, मुआशरे में कितनी बुराइयां फैल रही हैं, आवारगी कितनी जन्म ले रही है। मैं तो उन घरों के हवाले से बताऊं जिन घरों में आज के दौर के अंदर माँ बाप के सामने भी बच्चियां ऐसे लिबास पहन करके आती हैं कि अगर परहेजगार माँ बाप हैं तो उनको निगाहें झुका लेनी पड़ती हैं। न बेटों के सामने लिबास का ख्याल है, न भाइयों के सामने लिबास का ख्याल है, न रिश्तेदारों के सामने लिबास का ख्याल है, न माँ बाप के सामने लिबास का ख्याल है। याद रखें, बेहयाई और उर्यानियत का सैलाब इंसान के दिल को नेकियों की तरफ माइल नहीं कर रहा। आज अगर मुआशरा बिगड़ रहा है तो उसमें सबसे पहले मुआशरे के बिगाड़ने के अंदर सुनने का असर और देखने का असर। जब आदमी सुनता है गलत चीज तो उसकी जिंदगी के अंदर, उसके दिल के अंदर गलत चीज की मोहब्बत पैदा होती है। जब गलत चीज देखता है तो गलत चीज की मोहब्बत पैदा होती है। जिस तरीके से इंसान अगर काबा देखे तो तवाफ का जज्बा पैदा होता है, गुंबद खदरा देखे तो दुरूद शरीफ का जज्बा पैदा होता है। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान देखे तो अल्लाह की किताब की तिलावत का जज्बा पैदा होता है। बिल्कुल आप समझ लें, अच्छी चीजों को देखने की बुनियाद पर इंसान के दिल में अच्छी चीजों की मोहब्बत पैदा होती है। कहीं काबा शरीफ की तस्वीर लगी हो तो देखकर खाने काबा की मोहब्बत पैदा होती है। कहीं गुंबद खदरा की तस्वीर लगी हो, देखकर मदीना जाने की तड़प पैदा होती है। लेकिन आज अगर हम देखें तो इस मॉडर्न कल्चर के अंदर, हमारी बेडरूमों के अंदर और हमारे शबिस्तानों के अंदर और हमारे ड्राइंग रूम के अंदर और हमारे हॉल के अंदर न जाने किस किस किस्म की तस्वीरें हैं। मैं तो ऐसे बहुत सारे घरों में गया हूं जहां मियां बीवी की शादी की तस्वीरें सरहाने पर लटकती हुई बेडरूम के अंदर नजर आती हैं। मैं समझ नहीं पाता कि आखिर इसकी नुमाइश की क्या वजह है और क्या जरूरत है। अल्लाह अकबर, हम देख रहे हैं कान और आंख को आवारा कर दिया। और अगर किसी इंसान से कहा जाए ये न सुनो, गीबत न सुनो, चुगली न सुनो, गाने न सुनो, गजलें न सुनो, तो इंसान कहता हुआ नजर आता है कान है, अगर ये न सुने तो क्या सुने। तो मैं आपसे अर्ज करूंगा, जिसने कान दिए हैं ना वही कयामत में पूछेगा, ऐ मेरे बंदो जरा बताओ मैंने कान तुमको किस चीज के सुनने के लिए अता किए थे, क्या सुने थे तुम। कान से सवाल पूछा जाएगा। ये न सोचना कि जिसने कान दिया है वो सवाल नहीं पूछेगा, जरूर कान के बारे में सवाल पूछेगा, जरूर आंख के बारे में सवाल पूछेगा। इसीलिए कान क्या सुनना चाहिए, कान से उसके हवाले से भी कुरान ने बताया, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, और आंख से क्या देखना चाहिए उसे भी अल्लाह ने बताया और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया। अब ये दो चीजों का मुख्तसर सा आपके सामने मुख्तसर से तमहीदी कलिमात के बाद मैं आपको बताऊं, ये आज जो कल्चर गुनाहों का बनता जा रहा है, बुराइयों का बनता जा रहा है, उसमें आंख और कान का बहुत बड़ा दखल है। बुराइयों को देखते देखते, बुराइयों को सुनते सुनते, गंदी चीजों की गंदी बातें सुनते सुनते दिलों में गुनाहों की मोहब्बत ने जड़ पकड़ ली और इस बुनियाद पर हमारे कदम लड़खड़ा गए और बुराइयों के रास्ते पर चल पड़े। एक जमाना था कि माएं रात को सोने से पहले अपने बच्चों को सुनाया करती थी, लेकिन क्या सुनाया करती थी, गाने नहीं, गजलें नहीं, अपने बच्चों को रसूल आजम की सीरत सुनाया करती थी, ताजदारे कायनात की हयात तैयबा सुनाया करती थी, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकयात सुनाया करती थी, रसूल आजम के
शमाइल सुनाया करती थी, रसूल आजम के फजाइल सुनाया करती। नतीजा ये होता कि ये बच्चा जन्म लेने के बाद, और ये बच्चा जो सुना करता था, ये सुनने वाला बच्चा अपनी जिंदगी को कानून मुस्तफा के सांचे में ढालता और रसूल आजम की मोहब्बत में उसकी सुबह भी गुजरती, उसकी शाम भी गुजरती, उसकी रात भी गुजरती। इसमें माओ के सुनाने का दखल बहुत ज्यादा है, माओ का बताने का दखल बहुत ज्यादा है। और यह भी हुआ करता था कि बच्चे माओ से सुना करते थे, माओ से जब कुरान सुनते थे तो दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती, जब माओ से नाते सुना करते तो दिल में रसूल आजम की मोहब्बत पैदा होती। चुनाचे उन बच्चों की जिंदगी को अगर आप देखें तो सुनने और देखने के बाद उनकी जिंदगियों में इनकलाब पैदा होता। कौन नहीं जानता कि खातून जन्नत के लख्ते जिगर इमाम हुसैन ने बड़ी कुर्बानी अल्लाह की राह में पेश की। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, छोटी कुर्बानी देने के लिए आज का बच्चा तैयार नहीं होता, लेकिन करबला में ताजदारे करबला ने बेटा भी कुर्बान किया, भांजा भी कुर्बान किया, भतीजा भी कुर्बान किया। ये कुर्बानी का जज्बा आया कहां से? तो उन्होंने अपनी मां को कुर्बानी देते देखा था, अपने बाप को तिलावत करते देखा था, और साथ ही साथ जिंदगी की आखिरी सांस सजदे के अंदर निकल जाए, यह जज्बा अगर इमाम हुसैन के दिल में था तो सुन करके भी था और देख करके भी था कि रात को आंख खुला करती थी तो मां को सजदे में देखते थे, दिन में अपने वालिद को देखते तो मेहराब के अंदर देखा करते थे। इस वजह से उनकी जिंदगी में यह इनकलाब पैदा हुआ। याद रखें, अच्छी बातें सुना करो, अच्छी बातें देखा करो, अच्छी चीजें देखा करो, ताकि तुम्हारी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा हो जाए। मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, हजरत इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर रूहुल बयान के अंदर इरशाद फरमाते हैं, जिसे हुजूर की जियारत की तमन्ना हो उसे चाहिए कि वो कुरान में बार बार देखा करे, कुरान को बार बार देखा करे, कुरान खोलकर कुरान को बार बार देखा करे। फायदा क्या होगा? तो हजरत इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, जो कुरान को बार बार देखेगा कभी साहिब कुरान का जलवा उसे नजर आ ही जाएगा। आप मुझे बताओ, आज हमारी खवातीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कितनी सरशार हैं। अगर मैं ये कहूं कि उनके स्क्रीन के ऊपर हीरो की तस्वीरें हैं तो मैं समझता हूं ये कह के कर हम थक चुके और अब बूढ़े हो चुके, लेकिन कोई फर्क नजर नहीं आता। लेकिन इतनी बात मैं जरूर अर्ज करूंगा, ऐ खवातीन इस्लाम, कोई आपके काम आने वाला नहीं है, एक दिन इस दुनिया से जरूर जाना है। अगर कोई जात जमीन के ऊपर भी हमारी दस्तगीरी कर सकती है और कब्र की तारीख वादी में भी हमारा सहारा बन सकती है और मैदान महशर के अंदर भी हमारे लिए काम आ सकती है, तो वो जात है मदीने के ताजदार की जात, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। अब आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। आप कहेंगी कि देखकर सुनकर मोहब्बत पैदा होती है, कभी मोहब्बत देखकर सुनकर भी और एहसान के जरिए भी मोहब्बत पैदा होती है। किसी का एहसान है, दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। किसी का एहसान है, एक माँ का एहसान है कि माँ ने जन्म दिया, माँ की मोहब्बत पैदा हो गई। बाप का एहसान है कि उसने पाला, बाप की मोहब्बत पैदा हो गई। लेकिन हम जब जमाने पर निगाह दौड़ाते हैं तो ऐसे हजार माँ बाप मिलेंगे जिन्होंने बच्चों को जन्म तो दिया है लेकिन बच्चों के दिलों में उनकी मोहब्बत मौजूद नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुआशरे के अंदर ऐसे बहुत सारे इंसानों की जिंदगी का आप जायजा ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, दुनिया का इंसान एहसान करता है तो लिमिटेड एहसान करता है। तारीख इस्लाम का मुताला करो, रसूल रहमत की आमद से पेशतर का मुताला करो, औरतों की जिंदगी का मुताला करो, उनकी सिचुएशन क्या थी, तो आप महसूस कर सकेंगी कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले औरतों का हाल क्या था। बेवा को सबसे ज्यादा इस तरीके से तसव्वुर किया जाता कि ये अगर किसी घर में चली जाए तो वो घर नर्क हो जाएगा। ये बच्चे
बच्ची की पैदाइश को बहुत बुरा तस्वुर किया जाता, यहां तक कि उसे जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाता। लेकिन मुझे बताओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन औरतों को कैसा ऊंचा मकाम अता फरमाया। आप जरा देखेंगे तो महसूस होगा। कुरान पढ़िए, रसूल आजम की सीरत पढ़िए, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का मुताला कीजिए तो आपको पता चलेगा। एक शख्स बारगाहे रसूल में हाजिर हुए और हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा मुझ पर किसका हक है? पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ का। उन्होंने अर्ज किया, फिर किसका? सरकार ने फरमाया, तेरी माँ का। फिर उन्होंने पूछा, किसका? सरकार ने फरमाया, तेरी माँ का। और जब चौथी बार उन्होंने सवाल किया तो सरकार ने फरमाया, तेरे बाप का। आप जरा मुझे बताइए, मैं अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि आज के दौर के अंदर माओ को बुढ़ापे के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई साथ देता नजर आता है तो बच्चों के कंपेयर के अंदर बच्चियां ज्यादा साथ देती नजर आती हैं। मैं इस पर जब गौर किया तो मेरी अक्ल दंग रह जाएगी। बच्चा भी पैदा होता है, बच्ची भी पैदा होती है, लेकिन जिस बच्ची की पैदाइश को हुजूर ने रहमत फरमाया हो, वो बच्ची जमीन के ऊपर के लिए भी रहमत है, जमीन के अंदर के लिए भी रहमत है और मैदान महशर के लिए भी रहमत है। आप जरा सोचो, अगर कोई औरत मां है तो सरकार ने उसके कदमों के नीचे जन्नत रख दी। अगर बहन या बेटी है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने अपनी 2 बेटियां या 2 बहन या 3 बेटियां या 3 बहन की सही मानों में परवरिश की, यही बेटियां और यही बहन कल बरोज़े क़यामत जन्नत में जाने का उसके लिए जरिया बन जाएंगी। आप जरा सोचो, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिज़ाई बहन शीमा के साथ जो सलूक किया, तारीख उसके हवाले से गवाही देती हुई नजर आएगी। लेकिन ए ख़वातीन इस्लाम, औरतों ने रसूल आज़म का एहसान फरामोश कर दिया। अगर कोई औरत बीवी की हैसियत से है तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने अहलो अयाल में बेहतर है। और फिर सरकार ने फरमाया, मैं तुम सब में बेहतर हूं कि अपने अहलो अयाल में बेहतर हूं। आप जरा सोचो, बीवी के साथ उसने सलूक की तालीम अल्लाह के रसूल ने दी, मां के साथ उसने सलूक की तालीम अल्लाह के रसूल ने दी, बेटी और बहन के साथ अच्छी सलूक की हुजूर ने तालीम दी, खाला और फूफी के साथ अच्छे सलूक की हुजूर ने तालीम दी, हुजूर ने इख्तियार दिया। और मैं हैरान हूं, अल्लाहु अकबर, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और औरतों पर एहसानात के हवाले से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से मर्दों को इल्म हासिल करने के लिए हुक्म दिया और इल्म हासिल करना उनके लिए फर्ज फरमाया, ऐसे खवातीन के लिए भी फर्ज फरमाया। यही वजह है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खवातीन आकर के अर्ज करती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके खिताबात और वाज को सहाबा तो सुन लेते हैं, हमारे लिए कोई एक दिन मुकर्रर फरमा दें जिसमें हम आपसे वाज और नसीहत सुने और अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करें। सरकार उनके लिए मखसूस दिन मुकर्रर करके उनको खिताब फरमाया करते, उनके सवालात के जवाबात दिया करते। और तारीख गवाह है, हुजूर की बारगाह से इल्म हासिल करने वालियां ऐसी अल्लाह की नेक बंदियां तैयार हुई कि उनकी वजह से सदियां गुजर गईं, लेकिन इल्म का सैलाब और इल्म का आज भी चश्मा उनकी जिंदगी से और उनकी किताबों से जारी और सारी नजर आएगा। ऐ खवातीन, तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हुए जाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।